Our question number first is, for one dimensional motion described by x equal to t minus sin t। हमें बच्चों चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू टी माइनस साइन टी। ओके, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा x का, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस साइन t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस t। ओके, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन a is equal to dv by dt। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। हियर वी गेट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू साइन टी। ओके, यहाँ पे ये हमारा वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, देखिए बच्चों, एज acceleration as acceleration a is greater than 0 for all t is greater than 0। okay, acceleration is positive for all positive t। okay, hence x of t is greater than 0 for all t is greater than 0। okay, देखिए बच्चों, वेलोसिटी हमें क्या एक्सप्रेशन आया है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। ओके, देखिए बच्चों, व्हेन cos t is equal to 1 then our velocity will be 0। okay, velocity v is equal to 0। okay, देखिए बच्चों, when cos t is minimum मतलब कि इज इक्वल टू -1 then we get maximum velocity। okay, 1 minus cos t, cos t का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी cos t का मिनिमम वैल्यू जब हम लेंगे तो हमारे मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। 1 माइनस cos t इज इक्वल टू -1। ओके, v मैक्स क्या आ गया हमारा, इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, व्हेन वी टेक cos t मैक्सिमम, cos t इज इक्वल टू +1। ओके, उस केस में हमारा मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, 1 माइनस cos t की मैक्सिमम वैल्यू जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वेलोसिटी 0 आ जाएगा। v मिनिमम इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ बच्चों 1 होगा ना, 1 minus 1 is equal to 0। so here we can say that hence we can say that velocity v lies between 0 and 2। okay,
Hence, we can say that velocity v lies between 0 and 2. So, our right answer will be option number D is correct. Okay. V of t lies between 0 and 2. Our question number 2 is, at a metro station, a girl walks up a stationary escalator in time t1. If she remains stationary on the escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk upon the moving escalator will be. देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है? टाइम टेकन इन कवरिंग डिस्टेंस L. ओके, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन मूविंग एस्केलेटर. देखिए, लेट डिस्प्लेसमेंट is L, then velocity of girl will be velocity of girl. Here we write velocity of girl is equal to total distance divided by time t1. Okay, and then after we will write velocity of escalator VE is equal to L by T2. ओके, अब हम नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे गर्ल्स की. ओके, नेट वेलोसिटी of the girl is equal to velocity of girl plus velocity of escalator. ओके, दोनों का सम ले लेंगे. L divided by T1 plus L divided by T2. ओके, अब क्या करेंगे? हम टाइम निकालेंगे टू कवर ए डिस्टेंस L. ओके, if T is total time, in covering distance L, then we write L divided by total distance divided by total time taken is equal to net velocity of girl. Okay, L divided by T1 plus L divided by T2. ओके, L क्या हो गया? कट गया. क्या बचा? 1 upon T is equal to 1 upon T1 plus 1 upon T2. Okay, here we get time T is equal to T1 into T2 divided by T1 plus T2. ओके, ये हमारा टोटल टाइम आ गया. टोटल टाइम in covering distance L. Okay, it is the total time to cover a distance L. So our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चे, total time T is equal to आ गया T1 into T2 divided by T1 plus T2. Okay, this is our required solution. Our question number 3 is, a vehicle travels half the distance L with speed v1 and the other half with speed v2, then its average speed is. देखिए बच्चों, L by 2 डिस्टेंस विद स्पीड v1 से कवर कर रहा है एंड नेक्स्ट L by 2
डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ स्पीड v2, हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर वी राइट टाइम टेकन टू travel time taken to travel first half half distance, time taken to travel first half distance t1 is equal to लिख लेंगे l by 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है हाफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय विथ स्पीड v1। ओके, तो क्या आ गया टाइम t1 इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 2 v1। ओके, then after we will write time taken to travel second half distance, here we write t2 is equal to next half distance with speed v2। ओके, तो t2 is equal to क्या आ गया l डिवाइडेड बाई 2v2। ओके, अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। हियर वी राइट v एवरेज इज इक्वल टू एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया है l। ओके, एंड टोटल टाइम l बाई 2v1 प्लस l बाई 2v2। ओके, हमने क्या किया है l डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 टोटल टाइम। ओके, दोनों को वैल्यूज को पुट कर दिया है। देखिए बच्चों, l से l कट गया, ठीक है, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2v1 प्लस 1 अपॉन 2v2। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ओके, एवरेज स्पीड क्या आ गया, हियर वी गेट एवरेज स्पीड, here we get v average is equal to 2v1 v2 divided by v1 plus v2। okay, this is our required solution, so our right answer will be option number c is correct। okay, average speed is equal to आ गया 2v1 v2 divided by v1 plus v2। okay, our question number 4 is two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200-meter high with initial speed of 15 meter per second and 30 meter per second respectively. The time variation of the relative position of the second stone with respect to the first is shown in the figure. The equation of the linear part is, हमें इस क्वेश्चन में x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए बच्चों, इनिशियल स्पीड क्या गिवन है, हियर v1 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड एंड u2 इज इक्वल टू गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, height of the edge of the cliff
हाइट ऑफ द एज ऑफ क्लिफ एक्स नॉट इज इक्वल टू है 200 मीटर, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू माइनस जी, या फिर लिख सकते हो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलिए हम फर्स्ट स्टोन के लिए लिख लेते हैं। फॉर फर्स्ट स्टोन u1 इज इक्वल टू है 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। हियर using equation x1 is equal to x naught plus u1 into t plus half at स्क्वायर, ओके। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों 200 मीटर प्लस u1 हमारा स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस हाफ एंड a इज इक्वल टू है -10 into t square, okay. Here we get x1 is equal to 200 plus 15t minus 5t square, okay. Suppose this is our equation number first. For second stone u2 is equal to 30 meter per second, okay. Using equation x2 is equal to x naught plus u2 into t plus half a t square, okay. Here x naught is 200 meter plus u2 is 30 meter per second into t plus half a is equal to -10 meter per second square into t square, okay. Here we get x2 is equal to 200 plus 30t minus 5t square, okay. Suppose this is our equation number second, okay. अब क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। now here we subtract equation first from equation second, we get x2 minus x1 is equal to 15t, okay. This is our required solution. x2 minus x1 is equal to आ गया 15t, okay बच्चों. So our right answer will be option number C is correct, okay. Here we get x2 minus x1 is equal to 15t, okay. This is our required solution. Our question number 5 is a car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assume uniform. And how long does it take for car to stop? Okay, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन एक्सेलरेशन बताना है, ओके, एंड टाइम how long does it take for car to stop, okay. Here क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे 126 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, ओके।
18 7 the 126. Here we get initial velocity u is equal to 35 meter per second. Okay, and final velocity is equal to 0 होगा. ठीक है, and s is equal to 200 meter. Okay, here we use u square, v square is equal to u square plus 2as. Okay, here we get a is equal to v square minus u square divided by 2s. ओके, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. v इज इक्वल टू 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस. एस इक्वल टू 200 मीटर है. ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200. ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो नियरली हमारा एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा रिटार्डेशन 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये हमारा रिटार्डेशन एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, रिटार्डेशन a इज इक्वल टू आ गया 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो स्टॉप एक और. ओके, एज टाइम कैन नॉट बी negative. Okay, here we use v is equal to u plus at. Okay, here we get t is equal to v minus u divided by a. v is equal to 0. Okay, and u is equal to 35 divided by minus 3.06. ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो टाइम t इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली 11.43 सेकेंड. ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप? टाइम t is equal to 11.43 second. Okay, and retardation a is equal to आ गया 3.06 meter per second square. So our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, our question number 6 is the relation between time and distance is t is equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. The retardation is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशन गिवन है. t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, जहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट्स है. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिटार्डेशन. ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है टाइम एंड डिस्टेंस के बीच रिलेशन t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. ओके, बीटा एक्स. देखिए बच्चों, अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके बच्चों, इसको आप dx बाई dt लिख लेंगे। ओके, विच इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, देखिए बच्चों, dx बाई dt को आप क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt। ओके, so here we replace dx by dt by v। okay, v is equal to dx by dt which is equal to 1/2ax plus beta। okay, देखिए बच्चों, as acceleration a is equal to होता है dv by dt। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, dv by dx into dx by dt। okay, here dx by dt is velocity v, so here we write v dv by dx। okay, देखिए बच्चों, here we write acceleration a is equal to v dv by dx। okay, अब इसमें आप v की वेलोसिटी v की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2ax प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हियर वी गेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस, सॉरी बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल टू -2 अल्फा इंटू भी। ओके, या फिर पहले अभी यही लिख लो आप। ठीक है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -2 अल्फा इंटू इन ब्रैकेट 1/2 ए एक्स 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू 1/2 ए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, हियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, इसकी जगह हम v पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -2 अल्फा इंटू v इंटू वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ जाएगा -2 अल्फा v क्यूब। ओके, सो हियर वी राइट retardation is equal to 2 अल्फा v क्यूब। ओके, ये हमारा रिटार्डेशन आ गया। ओके बच्चों, 2 अल्फा v क्यूब। so our right answer will be option number a is correct। okay, retardation is equal to आ गया 2 अल्फा v क्यूब। okay, this is our required solution। Our question number 7 is the position of an object moving along x-axis is given by x of t is equal to a minus beta t square a minus bt square, where a is equal to 8.5 meter and b is equal to 2.5 meter per second square and t is measured in second। For the above situation, match the column first speed versus velocity with column 2 value and select the correct answer from the code given below। हमें कॉलम ए एंड कॉलम बी को, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करना है। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन
एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू गिवन है ए माइनस बी टी स्क्वायर. ओके, हियर ए इज इक्वल टू 8.5 meter. Okay, and b is equal to given है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके बच्चों, सो हम एक्स ऑफ टी को क्या लिख लेंगे? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 8.5 माइनस 2.5 इंटू टी स्क्वायर. ओके, अब यहां से हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, हियर वी राइट dx बाई डी टी. क्या आ जाएगा जब इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? 8.5 माइनस 2.5 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जब हम t करेंगे तो क्या आ जाएगा? हियर वी गेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस 2b_t. ओके, चलिए अब ऑप्शन ए चेक करते हैं हम. एट टाइम एट वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड. क्या आ जाएगा? v at 2 second t equal to 2 second. Here we get dx by dt at t is equal to 2 second minus 2 into b into t की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 4b. ओके, ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. ओके, माइनस 4b. हियर b इज इक्वल टू क्या है? b इज इक्वल टू 2.5 है. ओके बच्चों, यहाँ भी आप लिख लो माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू टी. हियर वी गेट माइनस 5t. ओके, सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा? हियर वी गेट माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारा क्या आ गया? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ए हमारा सेकेंड के साथ मैच हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली हम बी चेक करेंगे. बी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड. देखिए, here we write velocity at t is equal to 0 second is equal to dx by dt at t is equal to 0 second. क्या आ जाएगा? Here we get minus 2 माइनस 2b t है तो t इज इक्वल टू 0 जब आप पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ठीक है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो हियर b मैच विथ 3. ओके, सिमिलरली चलिए हम c मैच करते हैं. देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमें बताना है. ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा. ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. हियर वी राइट मॉड ऑफ माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. ओके,
here C मैच विथ फोर्थ, ओके। सिमिलरली हम D मैच कर लेते हैं। देखिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, अब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ओके। देखिए, हियर वी राइट x of t2 minus x of t1 divided by t2 minus t1, ओके। x of 4 minus x of 2, ओके, divided by 4 minus 2। देखिए बच्चों, x ऑफ t इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, a माइनस बी टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, टी इज इक्वल टू 4 है, तो लिख लेंगे a माइनस बी इंटू 4 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 4b minus 16b divided by 2, here we get minus 12b by 2 which is equal to minus 6b, okay। here a is equal to है हमें क्वेश्चन में गिवन 8.5 मीटर एंड b is equal to गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। जब यहाँ पे आप p की वैल्यू पुट कर दोगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड, ओके। ऑप्शन डी किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से, ओके, -15 मीटर पर सेकेंड। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। velocity of object at t equal to 2 second is -10 meter per second, and velocity of object at t is equal to 0 second is 0 meter per second, okay। and instantaneous speed of an object at t is equal to 2 second is 10 meter per second, okay। and velocity and average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second is -15 meter per second, okay। So our right answer will be option number B is correct.